گورنر ہاؤس جس طرح کے کام کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سبھی کو آگے بڑھ کر اس طرح کے کام کرنے چاہیے۔ میں نے ایک گورنر سمٹ رکھا تھا، 5 گورنر جب یہاں آئے تھے تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو یہی آئی ٹی کا پورا سیٹ اپ یہاں سے آپ کی طرف منتقل کریں گے۔ 4-5 گورنر ہاؤسز میں بچوں کو آئی ٹی سکھائیں، کیونکہ فیوچر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی کا ہے اور اے آئی کا ہے، تو ہمیں ابھی سے اس طرف گامزن ہو جانا چاہیے تاکہ آنے والے سالوں میں اور مہینوں میں ان بچوں کا مستقبل ہم بہتر بنا سکیں۔ تو اسی طرح سے میرا ماننا ہے کہ اگر آپ اچھے کام کریں گے تو کام بولتا ہے، یعنی ہم نے اپنے کاموں کے لیے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ اس کی تعریف کریں۔ جو ہمارے ڈاکٹر منور حسن صاحب نے بات کی وہ بھی انہوں نے دل سے کی، یا جو ہمارے یہاں کمپیئر ہے کہ میمن صاحب اگر وہ بات کر رہے ہیں تو وہ بھی دل سے کرتے ہیں، کیونکہ ان سب نے اپنی آنکھوں سے یہاں گورنر ہاؤس میں یہ سب دیکھا ہے۔ یہ کوئی اسپرے نہیں ہے، یہ کوئی ایک دن کا وہ ہاسپٹل نہیں ہے جو حکمرانوں کے آنے سے پہلے بیڈ بچھا دیے جاتے تھے اور ان کے جانے سے پہلے ہی اٹھا دیے جاتے تھے۔ تو یہ الحمدللہ آئی ٹی کا جو کام ہے یہ پچھلے 1.5 سال سے یہاں چل رہا ہے، اور اسی طرح سے باقی بھی جو انیشیٹوز ہیں وہ ہمارے روزانہ کی بنیاد پر چل رہے ہیں، اور میڈیا ہمارا اس کا وٹنس ہے کہ ہم جو کام جو انیشیٹو کرتے ہیں پہلے میڈیا کو بلاتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جس طرح سے پچھلے 2 سالوں میں ہم نے رمضان کے لیے دروازے کھولتے ہیں اور لوگ آ کے یہاں فری اور بریک اپنا افطار اور ڈنر کرتے ہیں، اس بار ہم نے 1 ملین لوگوں کا انتظام اور اہتمام کیا ہے، اور اس میں ہم نے روزگار گفٹ بھی رکھے ہیں تاکہ جو لوگ آئیں گے ان کو ہم ایسے گفٹ دے سکیں جس سے وہ اپنا روزگار چلا سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس میں سبھی لوگوں کا ہمیں ساتھ چاہیے، اور خاص طور پہ میڈیا کا، ہمارے اساتذہ کا، تاکہ زیادہ سے زیادہ جب یہ لوگوں کو چیز پہنچے گی، میرا مقصد وہاں پہنچانے کا صرف ہماری خودنمائی نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ اور لوگ بھی اس طرح کے کام کریں، کیونکہ ایک ہمارے اکیلے کرنے سے اس شہر کی 3 کروڑ کی آبادی ہے اور پورے ملک کی 24 کروڑ کی آبادی ہے، تو جب تک سارے ادارے اور سارے لوگ ایسے کاموں میں آگے نہیں آئیں گے تب تک ہم اپنے لوگوں کی مدد نہیں کر سکیں گے، ان کی زندگیوں میں خوشحالی نہیں لا سکیں گے۔ تو سبھی کو یہ کام کرنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہوں تو اس کو میڈیا بھی دکھائے اور باقی لوگ بھی اس کو آگے بڑھائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے کہ ہماری چھوٹی سی ایفرٹ سے آج سر سید یونیورسٹی اور ایک یہ جو سولر کمپنی ہے ان کے درمیان معاہدے سے میرے خیال سے سال کے کوئی 5 کروڑ روپے کی انشاءاللہ بچت ہوگی، اور اگر سندھ کی ساری یونیورسٹیز اس پر شروع کر دیں کام تو پھر یہ میرے خیال سے بچت اربوں روپے میں چلی جائے گی۔ تو آج کے اس دور میں جہاں معاشی مشکلات ہیں بچوں کے لیے، اور میں ساری یونیورسٹیز کو کہوں گا کہ جب ان کو یہ بینیفٹ ملے تو وہ اپنے یہاں اسکالرشپ بڑھا دیں تاکہ بہت سارے لوگوں کو موقع ملے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں، اور جہاں جہاں بحیثیت گورنر سندھ میری ضرورت پڑے گی میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ گورنر صاحب یہ بہت اچھا کام کیا، لیکن آج آپ سے وفاقی وزیر داخلہ نے بھی ملاقات کی، آپ صوبے میں مسلسل لاقانونی کے بارے میں آواز بلند کرتے رہے، آج یقیناً آپ نے وفاقی وزیر داخلہ کو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ہونے والی واقعات سے آگاہ کیا ہوگا، اس بارے میں کچھ بتائیے۔ جی، میں نے محسن نقوی صاحب کو پہلے تو ان کے کاموں کی تعریف کی کہ دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے۔ انہوں نے 4 مہینے میں لاہور میں جو قذافی اسٹیڈیم ہے اس کو رینوویٹ کر کے دکھا دیا، 3 مہینے میں کراچی والا رینوویٹ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، صرف ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں آج ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے ہمت کی اور آپ نے ایک اسپیڈ دکھائی تو پاسبلٹی نظر آ گئی، اور یہاں جو کراچی کے خاص طور پہ سندھ کے
हालात हैं उस पर मैंने ज़रूर उनसे बात की है। उनकी तवज्जो का मैंने कहा है कि आपकी ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जो कराची के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम नज़र आ रहा है आपको, उस पर बेहतरी लेकर आएँ। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल वादा किया है कि वो यहाँ इन तमाम चीज़ों पर तवज्जो भी देंगे और इंशाअल्लाह ताला ये मसाइल हल भी होंगे। अच्छा राणा साहब, ये वाक़या खासतौर पे हुआ है, आज आफाक अहमद को जेल के अंदर डाल दिया गया, वही टैंकरों वाला इशू जिस पे आपने भी लफ्ज़शाही की थी और बड़ा सख्त स्टैंड लिया था। शायद आप गवर्नर न होते तो आज आप भी अंदर होते, आपके खिलाफ भी इस पर आप क्या कहेंगे? सूरत हाल है या कोई रीलॉन्च है कि आफाक अहमद? देखें, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप सभी लोगों ने देखा कि पिछले 2 महीनों में 70 से ज़ायद लोग कराची के डंपर तले कुचल दिए गए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये ट्रैफिक गर्दी है। जैसे पहले कराची में दहशत गर्दी होती थी, तो ये ट्रैफिक गर्दी है कि कोई कानून नहीं है। चाहे अफगानिस्तान से कोई डंपर चला के यहाँ पहुँच गया है तो वही डंपर बग़ैर नंबर प्लेट्स के चल रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की गिरफ्तारी की, तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जितनी तेज़ी आपने गिरफ्तारी में दिखाई है, उतनी ही तेज़ी उन कातिल डंपरों के ड्राइवर्स और मालकान को पकड़ने के लिए भी दिखानी चाहिए, ताकि कानून सबके लिए बराबर का जो निज़ाम है वो नज़र आए। ये बात ठीक नहीं है कि आप एक को तो आवाज़ उठाने पर गिरफ्तार कर लें और दूसरा जो कातिल है वो उसके हाथ में भी हथकड़ियाँ होनी चाहिए और नज़र आनी चाहिए कि जी आपने उसको गिरफ्तार किया और हथकड़ी लगा के आप उसको भी अदालत में लेकर आ रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें भी जो सियासतदान है, अपने लोगों को ये तलकीन नहीं करनी चाहिए कि आप कानून हाथ में लेकर इमलाक को नुकसान पहुँचाएँ, चीज़ों को आग लगा दें, बल्कि बनिस्बत इसके हम सियासतदानों को, लोगों को, अपने शहर के लोगों को ये तलकीन करनी चाहिए कि आप कलम हाथ में उठाएं, आप आईटी जैसे कामों में आगे आएं, आप लोगों को शऊर दें, तालीम दें, हुनर दें, न कि उनको आप ये वाली तलकीन करें कि वो कानून हाथ में लें। कानून नाफिज करने वालों को कानून का इस्तेमाल करना चाहिए और ये नज़र आना चाहिए कि कानून पर अमल दरामद हो रहा है। हाँ, डंपर जो कातिल डंपर हैं, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अगर टाइम रात 11 से सुबह 7 बजे का है, उससे पहले दिन में कोई डंपर नहीं चलना चाहिए। मैंने इस पर कई दफ़ा आवाज़ उठाई और एक हमारे सिंध के वज़ीर हैं, बड़े अच्छे शख्सियत हैं, मैं उनकी हमेशा तारीफ़ भी करता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि सईद गनी साहब ने मेरे डंपर के बयानात पर, जो कि कराची के शहरियों को कत्ल कर रहा है, उस पर इतना मज़ाहिया खेस और नॉन सीरियस बयान देना कि गवर्नर जो हैं वो एडवाइज़र लग जाएं डीआईजी के, मतलब ये तो मजाक हो रहा है। सईद भाई, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन खुदारा मुझ पर आप बाद में तनकीद कर लीजिएगा। पहले आप उन ऐसे डंपर मालकान और ड्राइवरों के लिए बयान दें जिन्होंने 70 जानों को इस शहर की ज़ाया कर दिया, कत्ल कर दिया। उन 70 माओं को, उन 70 वालदैन को हम क्या जवाब दें कि आज इस शहर में हम ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकते, अदालत के ऑर्डर्स होने के बावजूद नहीं कर सकते। मैंने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखा है। कुछ लोग मुझे सोशल मीडिया पे कहते हैं कि गवर्नर साहब सिर्फ आप बात करते हैं, तो मैं उनको भी बता दूं कि गवर्नर बात ही कर सकता है, उजागर कर सकता है, आपको शऊर दिला सकता है, आईजी सिंध को खत लिख सकता है, चीफ जस्टिस को खत लिख सकता है। लेकिन आप ये भी देखें कि अगर मेरे पास एग्जीक्यूटिव पावर होती तो फिर मैं अमल दरामद करता। यहां तो बयान दें तो उस बयान को ये कहने के बजाय कि हम तायद करते हैं जो गवर्नर सिंध कह रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है। यानी आज इस शहर में या इस सूबे में जो डंपर माफिया है वो इतनी ताकतवर है कि आप उसके खिलाफ नहीं बात करते, बल्कि जो उनके खिलाफ बात करता है आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो आप उन लोगों को कैसे जवाब देंगे? लेकिन बहरहाल मैं समझता हूं कि हम सभी को कानून हाथ में बिल्कुल नहीं लेना। बड़े अरसे के बाद इस शहर में सुकून आया है,
कोई जलाओ घेराव की ना सियासत होगी, ना मैं किसी को ये कहूँगा कि वो कानून अपने हाथ में ले। हाँ, ये ज़रूर है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे, ख़ास तौर पे ट्रैफिक पुलिस के एहलकार रोडों पर नज़र आएँ, एसएसपी ट्रैफिक नज़र आएँ, डीआईजी नज़र आएँ, और आइंदा कोई ऐसा वाक़या ना हो उसको यकीनी बनाएं। लेकिन अगर ऐसा वाक़या फिर होगा तो मैं आवाज़ भी उठाऊंगा और जो कुछ मैंने कहा है आज तक उस पर अमल दरामद भी करूंगा। गवर्नर साहब ये बताइएगा, खतूत की बात आपने की है, दूसरी जानिब भी कुछ खतूत लेके जा रहे हैं, लेकिन वो आर्मी चीफ के नाम लेके जा रहे हैं। माजी में आप जो है वो इमरान खान को ये समझाते रहे कि आप सिस्टम से या रियासत से जो है वो नहीं लड़ सकते, लेकिन अब उनके खतूत से ये लग रहा है कि वो मुआफ़ी की तरफ आ रहे हैं। तो क्या आप जो है वो आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान जो है वो कोई माफ़ीनामे का किरदार अदा करेंगे कि वो अगर माफ़ी मांगने पर आए हैं? देखें जी, मैंने तो पहले भी कहा था कि हमारे पास बाहर बैलोफोप लगी है घंटी, जिसका जिक्र मुनव्वर भाई ने भी किया है। अगर इमरान खान का कोई बंदा आके वो घंटी बजाएगा तो मैं अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। बाकी अगर जहाँ उन्हें रखा गया है, अगर वहाँ बिजली महंगी है तो मैं दाऊद पता साहब के बच्चे से कहूँगा, अपने आमिर अजीम भाई से, कि वहाँ भी कोई ऐसा सोलर सिस्टम लगा दें ताकि बिजली वहाँ भी सस्ती हो जाए, क्योंकि हमने तो मईशत ठीक करनी है। बहरहाल जो हम सब मिलकर इस मुल्क की मईशत और तरक्की में, तालीम में ख़ास तौर पर, आज फैकल्टी मेंबर्स बैठे हैं, वीसी साहब बैठे हैं, मैं ये कहूँगा कि हमें अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ हुनर की तरबियत भी यूनिवर्सिटीज़ में देनी चाहिए। उसके लिए भी हम काम करें, क्योंकि जब एक आदमी इतना अरसा लगा कर 12-14 साल जब तालीम मुकम्मल कर लेता है तो आज का जो नया दौर है उसमें उसे जब तक उसके पास स्किल्स नहीं होंगी तो वो फिर 2-3 साल उसके लिए ज़ाया करता है। तो वो हम अपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर शामिल करें ताकि लोगों को स्किल्स भी सिखाई जा सकें और तालीम भी सिखाई जा सके। शुक्रिया। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मियाँ बीवी भी एक साथ रहते हैं, झगड़ा होता है तो कभी ससुर का फ़ोन आता है, कभी वालिद साहब का फ़ोन आता है, आपस में ना लड़ो, तो इनको भी हम कह देंगे आपस में ना लड़े।